آئندہ بجٹ میں بینک ڈپازٹ اور بچت اسکیموں پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز۔ ذرائع FBR کے مطابق نان پوائلرز کے کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھنے کا امکان۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% متوقع۔ یومیہ 50,000 زیادہ رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی بھی تجویز۔ 800 cc سے چھوٹی گاڑیوں پر سیز ٹیکس میں اضافہ متوقع۔ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر لیوی عائد کرنے، جبکہ کیپٹل گین اور منافع پر بھی ٹیکس میں اضافہ کرنے کی تجویز۔ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ضروری ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے قومی سطح پر ریونیو میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ٹیکس نظام کو مؤثر بنانا اور اصلاحات قومی سلامتی کا تقاضا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی یقینی بنانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ کہتے ہیں تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا ثبوت ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے پاکستانی وفد آج امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد سلامتی کونسل کے 5 مستقل 9 غیر مستقل ارکان کے سفیروں سے ملے گا اور انہیں بھارت کے حملوں سے شہریوں کی اموات اور مودی حکومت کی آبی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات امن کے بجائے دشمنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی تشویشناک ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب بنا کر پیش کرنا حقیقت سے بالاتر ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے سے واقف ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ مسئلہ کشمیر خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس بنیادی مسئلے کو نظر انداز کرنا خطے کو بد اعتمادی اور ممکنہ تصادم کی راہ پر ڈالنے کے مترادف ہے۔ مسلم لیگ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور میزائل ٹیکنالوجی دی۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ تمام 185 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ نے 78,419 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار فاخر نشاد گھمن 40,037 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ لیگی کارکنان کا جیت کی خوشی میں جشن، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا۔ سمبھڑیال کا ضمنی الیکشن 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ ملا۔ PTI والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں۔ مخالفین کا کام کیچڑ اچھالنا ہے۔ رونا دھونا PTI والوں کا وتیرہ ہے۔ عوام نے گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ شریف خاندان نے پرانی روش اپنا کر دھاندلی نہیں، کھلم کھلا دھاندلا کیا۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں سمبھڑیال کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون جیتنے کے باوجود مایوس اور تحریک انصاف ہار کر بھی مطمئن ہیں۔ جعلی حکومت کب تک انتخابی نتائج تبدیل کرتی رہے گی، سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی کراچی کا کے الیکٹرک کے خلاف آج احتجاج کا اعلان۔ کے الیکٹرک کا لائسنس فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ منم ظفر خان کہتے ہیں 10 سے زائد اہم شاہراہوں پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ کراچی میں روزانہ 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گھریلو زندگی، کاروبار، تعلیم اور صحت کا نظام دھرم بھرم ہے۔
कराची के अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। 2005 से अब तक के इलेक्ट्रिक की पैदावार कम और सार्फिन दुगने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। कराची रजिस्ट्री का सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक SHO को ओहदे पर बहाल रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि कानून के मुताबिक IG सिंध ने मुलाजमत से बर्खास्त करते वक्त SHO गुलाम अब्बास संदरानी को सुनने का मौका नहीं दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ में गैर कानूनी असलहे केस की समाअत। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के वालिद की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत ने रिमांड दिए कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात को जंग का मामूल करार देने पर भारतीय सियासत में तूफान बपा। अपोजिशन बरहम, फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर आवाम से दरोगोई बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनानी होगी। पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? बीजेपी लीडरान पर जिनसी हरासानी के इल्जामात मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मोदी का पैगाम है रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाह के हाथों हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत और मोदी ताहाल तनकीद की जद में। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? मोदी सरकार की हिंदू खातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश आवाम ने मुस्तरद कर दी। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय औरतों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराते तस्वीर है। फौज की तस्वीर क्यों नहीं? क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगे। मोदी सरकार की सरपरस्ती में आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों का मावराए अदालत कत्ल इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच का अक्कास है। मोदी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियों को नाफिज करने में आसाम पुलिस मुसलमानों को मावराए अदालत कत्ल करके अहम किरदार अदा करती है। हिंदू इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मावराए कत्ल वाक़यात बढ़े। बांग्लादेश के करेंसी नोटों से मुल्क के बानी और साबिक वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए गए। मकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात पर प्रिंट किए गए हैं।
पहले मरहले में 20, 50 और 1000 रुपए की मालियत के नोट जारी किए गए हैं। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग से जाँ बहक नौजवान के गुरसा का जिना ब्रिज पर एहतजाज, महकमा जाती कार्रवाई का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 1 करोड़ 63 लाख रुपए की मनशियात बरामद। मोटरवे पुलिस M5 ने लाहौर से रेंट की गाड़ी छीनने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस को बजरिया हेल्पलाइन 130 कार से छीनने की इत्तला मिली। पेट्रोलिंग अफसरान ने ओज शरीफ के करीब कार को रोक लिया। 2 मशकूक अफराद और कार को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कायदाबाद के नजदीक था। सालाना बुनियाद पर नफे की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा, पॉलिसी सतह पर SIFC की काविशें समरावर, मईशत पर पुरएतमाद की बहाली। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों को नफे की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनियों की नफा की रकम की वापसी में 115 का नुमाया इजाफा हुआ। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि नफे की रकम की वापसी में तेजी IMF प्रोग्राम और जान में मुआशी पॉलिसी के बायस मुमकिन हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा, 1,20,359 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 278 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 122 कंपनियों के हिस्से में कमी, 19 के हिस्से मुस्तहकम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज के हवाले से तैयारियों का जायजा। जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज, दौरा वेस्ट इंडीज बांग्लादेश पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। कौमी क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। अरशद नदीम ने अपनी जीत और गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। जीत के लिए बहुत मेहनत की है। टोक्यो चैंपियनशिप के लिए भी भरपूर तैयारी करूंगा। हुकूमत ने सपोर्ट किया है। अदाकार मिर्जा निगार रफ़ी खावर अल मारूफ नन्ना की आज 39वीं बरसी। गैर मामूली अदाकार नन्ना की पहली फिल्म वतन का सिपाही थी। फिल्म नौकर से शोहरत मिली। साथ ही अदाकार अली एजाज के साथ जोड़ी मशहूर हुई। 50 से ज़्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। कमाल अहमद रिजवी के साथ TV शो अलिफ नून आज भी मकबूल है। मुख्तसर कैरियर में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लेजेंड गुलकार मुजीब आलम को बिछड़े 21 साल गुजर गए। मद्दाह आज भी उनको नहीं भूले। मुजीब आलम के गाए हुए गाने भारत में भी कॉपी किए गए। मशहूर गाना मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा भारतीय गुलकार किशोर कुमार ने चरबाग गाया। मुजीब आलम ने 1979 में फिल्मी गानों से रिटायरमेंट ले ली थी। 2004 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आसूदा खाक है, जहां गुलकार अहमद रश्दी का भी मदफून है। Sensei LaRusso. Let's make a Karate Kid with karate. Ancient way. और मार्शल आर्ट सीखें नए जज्बे और जिंदगी की नई चाहतों के साथ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के उस्ताद जैकी चैन हैं। बच्चों के साथ कराटे किड्स की नई सीरीज कराटे किड लेजेंड ईद कुर्बान पर धूम मचाएगी। फिल्म 8 जून को सिनेमा घरों की जीनत बन जाएगी।